A warm welcome, a warm welcome and a very good evening to all our participants on behalf of the Duckling Next Generation Senior Secondary School. We have organized this motivational webinar for all of you for a kickstart to begin with. We will be conducting a lot more programs to ensure that all the teachers have a year-long learning. The topic of the webinar today is empowering teachers, and we have with us Ms. Jyoti Kachyo ma'am, who has over 40 years of experience in the field of education. She is an educator, author, explorer of opportunities in all-round student and faculty development, and a TEDx speaker. She's an MA in English literature. She has done a few more courses from University of London, University of California, from Cambridge, University of Queensland. And to add onto this, she has recently completed her MBA as well, I think in the COVID time. It is a privilege to have you with us today as our speaker, ma'am. We welcome you once again, and I hope we make the most of this session. I would also like to thank the principal, ma'am. Madhurima ma'am is not here with us now, but I'd like to thank both of them for always encouraging such programs for the school. And we'll begin the session now, and I request all the teachers to keep their cameras on, mics on mute. In case of any queries, once again, make sure that you unmute yourselves and ask your queries right away or maybe later, or you can just drop a message in the chat box. Jyoti ma'am, we'll begin now. Thank you so much once again. Thank you very much. जैसे ही आपको बता दिया गया है, my name is Jyoti Kachyo और I'm about to begin the session. आप लोग इस दस पता 2021-2022 में सबसे ज्यादा बोलने वाला सेंटेंस कौन सा है? Can you guess which sentence has been spoken the most in 2021 and 2022? आप में से कोई guess करना चाहेगा? Am I audible? Yes, ma'am. Am I audible? Is the screen Am I audible visible? to everyone? Yes. Am I audible to everyone? Am I audible? Is the screen visible? बताइए. Thank you so much for this opportunity, ma'am. And I'm going to talk about empowering teachers. आप लोगों को क्या समझ में आता है? Empowering teachers का क्या मतलब होगा या क्या तात्पर्य होगा? Anybody wants to answer or should I continue? So, you know, empowering teachers will change not only the world, but it will help us to empower students also. If we want empowered students, we have to empower teachers. And if we want to change the world, teachers have to be empowered. Or empower का meaning क्या है? To give somebody power or authority to do something. बहुत साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? Empower yourself so much that God asks you, what do you want? So basically, if teachers wait to be empowered by the administration, by the principal, by anybody else, it's not going to be easy. हमें खुद को ही अपने आप को empower करना है. और एक और saying है, the architect made houses, the writer made poetry, the scientist made discoveries, but the teacher made them all. जितने professions हैं दुनिया में, हर प्रोफेशन को क्रिएट करने के लिए एक टीचर का होना जरूरी है. और टीचर्स को एम्पावर करना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि एन एम्पावर्ड टीचर हैज द कॉन्फिडेंस in the classroom, which often passes into student confidence in the teacher. तो टीचर को यदि अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा, स्टूडेंट्स को उसमें कॉन्फिडेंस टीचर में हो जाएगा. And empowered teachers teach within standards, but they incorporate their own free teaching spirit. यानी जो empowered teacher होगी, वो वही कोर्स तो वही पढ़ाएगी, परंतु किंतु but वो टीचिंग पैटर्न अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकती है. And she will be able to inspire students to think freely and with excitement and enjoyment of the subject matter. अगर आप लोगों को ध्यान हो कि एक you may remember that there is an English story है, My Mother at the Railway Station. तो उस स्टोरी में क्या होता है कि the boy goes to the railway station and nobody comes to receive him.
nobody comes to leave him and he's very upset. तो एक अनजानी सी लेडी होती है जो उसको ऐसे pretend करती है वो mother है, and at the end of the story we realize कि yes, the boy doesn't have a mother. तो जब मेरे को ये स्टोरी पढ़ानी थी क्लास 12 में, बहुत साल पहले की बात है, या क्लास 9 में, I was able to, and unfortunately in that week only one child had actually lost her mother. So I just cut off the story from the syllabus, but of course it was 9th or 11th. But of course जो मैंने story change करी या course change करा या course में से कुछ delete करा, I brought it to the notice of the principal. But I did not stick to the lesson plan कि मुझे ये वाली story इस रोज करनी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि it's going to hurt the child. So the children enjoy the subject matter. Also, एक और है कि the artist gave all his disciples a lump of clay. मिट्टी दी गई है और कहा गया है shape it in the best way possible, shape it the way you can, shape it so that you would be proud of your work, shape it in a way that it will be useful to the planet. So हमारे हाथ में बच्चे जो आते हैं, छात्र छात्राएं जो आते हैं, students जो आते हैं, learners जो आते हैं, they are a lump of clay. और हमें ये करना है, we have to shape them in the best way possible. We have to shape them in such a work that we are proud of our work, and we have to shape them in such a way that they are useful to the planet. And all of us are empowered, and the learners were doubtful. So the artist said that you can do it, you are all empowered. So if the teachers are empowered, the students will be empowered. और हमें empower होने के लिए क्या करना है? I'm just zooming the site. First is we have to connect to students. We have to develop our vision. We have to have positive stress. यानी stress हमेशा खराब नहीं होता है. Our stress has to be positive. We have to have experiences that motivate and inspire. और जो बातें हम करें, जो magazines हम पढ़ें, जो journals हम पढ़ें, जो websites हम देखें, सारी ऐसी होनी चाहिए जो हमें motivate करें और inspire करें. हमें अपनी critical thinking को, analytical thinking को बढ़ाना है, enrich करना है. We have to adopt and adapt to IT skills. यानी हमें computer friendly नहीं होना है, हमें computer enabled होना है, हमें computer empowered होना चाहिए. इंटरनेट है, Zoom है, WebEx है, Google Meet है, Facebook है, Twitter है, इस सब से. और Facebook का मतलब ये नहीं है कि हम अपने friends, students से friendship करेंगे, friend बनाएंगे, परंतु हमें उसमें notice देना आना चाहिए. At the same time, we have to develop our life skills and we have to connect to students. तो teacher empowerment के हमने अभी देखे हैं कि there are 7 points. और अगर आपको ध्यान हो, you are all aware that the number 7 is the luckiest number in the world. There are 7 oceans, there are 7 continents, there are 7 wonders of the world, there are 7 colors. धुन भी 7 होती हैं, सारे गामा पाधानी. उसके अलावा इंग्लिश में भी डो रे मी फा सो ला टी. तो ये 7 चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है टू एम्पावर आवरसेल्व्स. एंड आई रिपीट, हमारे एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि हम शक्तिशाली हो जाएंगे और लोगों को डांटेंगे या कंट्रोल करेंगे. हमारे एम्पावरमेंट का मतलब है कि हम स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को एम्पावर करेंगे. सीबीएसई की एक वर्कशॉप मैंने अटेंड करी थी बहुत साल पहले. उसमें एक चीज कही गई थी, वो ये थी कि टीचर्स शुड नेवर कॉल देमसेल्फ टीचर्स, वी हैव टू कॉल आवरसेल्फ फैसिलिटेटर्स, और स्टूडेंट्स को हमें लर्नर्स बोलना है. तो पहली चीज जो हमें करनी है, जो मैंने अभी डिस्कस करी थी, एक तरह से रिपीटिशन हो रहा है, कनेक्ट टू स्टूडेंट्स, डेवलप विजन, पॉजिटिव स्ट्रेस, experiences that motivate and inspire, enrich analytical abilities, adopt and adapt to IT skills and develop life skills. अब students से हम कैसे करेंगे? You know, the process of connecting to students is easier said than done. मैंने कह दिया students से connect हो जाइए. It's not a very simple task. So we have to combine skill with empathy. यानी हमें एबिलिटी भी होनी है दोस्ती करने की, और हमें उनके संग एक कंपैशन भी रखना है, एक भावनात्मक रिश्ता हमें जोड़ना है. दैट इज एम्पैथी. बट एक बार आप ये ट्रेट सीख लेंगी
तो एक टैलेंट ऐसा होगा जिसमें आपका क्लासरूम का कल्चर बदल जाएगा। क्लासरूम ग्रो करेगा, स्टूडेंट ग्रो करेगा, स्कूल ग्रो करेगा, और जब स्टूडेंट ग्रो करेगा तभी हम ग्रो करेंगे। हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स ग्रो करें। और आप ये नोट करिए, a lot of teachers spend a lot of time talking about students to their colleagues or to the students' parents, but minimal time actually talking to the students themselves. वो जो टाइम हम एक दूसरे से बात करने में लगाते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात करते हैं उनके बारे में, वही बातचीत अगर हम स्टूडेंट से करें, if we are actually talking to students. This strategy suggests that teachers engage in conversations with students themselves to learn from them and learn about them. जब स्टूडेंट्स हमसे बात करेंगे एक्स्ट्रा, where are you from? Ma'am, I live in Pratap Nagar, or I am from Kanpur, or I am from whichever colony of Jodhpur, Jaipur. आपको कुछ बच्चे के बारे में पता चल जाएगा। रोज बात करना जरूरी नहीं है, but if you have a class of 40 students and maintain a diary, and the diary that you maintain should have a personal record about who has studied where. And मैं अपनी डायरी दिखा रही थी, तो मेरी डायरी में अगर आप देखेंगे तो अल्फाबेटिकल स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, and I've written that the child is from Amritsar, or the child is from I think Shimla, or the child is from wherever. So I have a person, it's in my diary. The students, of course, online teaching में students को नहीं पता चलता है कि मैं डायरी देख के बोल रही हूँ कि okay, how is Kanpur these days? But that establishes a connect with the student. उसके अलावा जो क्लास करिकुलम है और टीचिंग है, इसमें भी ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी तो मैंने बहुत कम बात करी, पर सुनीता मैम से उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में है, तो थोड़ा सा मुझे पता चल गया कि इट इज एन एजुकेशन रिलेटेड फैमिली। तो जब आप जर्नल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, और जरूर पढ़िए, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए। यू नो, रीडिंग इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन पॉसिबली डू। सो व्हेन यू रीड सो मच, यू विल बी एबल टू कनेक्ट, एंड आपको स्टूडेंट इंटरेस्ट के बारे में भी पता चल जाएगा। असाइनमेंट्स हमेशा जब आप दें तो ऐसे दीजिए स्टूडेंट्स कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट। और ये जो आप नोट करेंगे आजकल चल रहे हैं हायर ऑर्डर स्किल्स, लैंग्वेज और आर्ट्स में स्पेशली यू कैन आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट एसेज और जर्नल राइटिंग अबाउट देयर कॉलोनी और अबाउट देयर मदर। इन मैथमेटिक्स आप ये स्पेशली कर सकते हैं कि स्टूडेंट कंस्ट्रक्टेड वर्ड प्रॉब्लम्स करिए, या कम्युनिटी बेस्ड इंक्वायरी प्रोजेक्ट्स करिए। हेल्थ में या उसमें मैं आपको ये दिखा रही थी जो अपना, आई डोंट नो आपको कैमरा में दिखेगा या नहीं, बट जैसे जिस किसी के बारे में है आपको दिख रहा है, बट आई थिंक उल्टा दिखेगा। आई शुड हैव मेड अ फोटोकॉपी ऑफ दिस अर्लियर, कि एवरी चाइल्ड्स नेम इज रिटन, एंड ऑल्सो इट इज रिटन योगेश्वरी औरंगाबाद, शेरिल उदयपुर सेंट मैरीज, आकिब भुज, Vashi Matadesh, he's got history sociology, Sonali Delhi St. Mark's, Kanishka Udaipur DPS. So what this diary helps me with, that at that moment I say, okay, आजकल उदयपुर में मौसम क्या है? So the child feels very connected to me. और मैं basically आपको बता रही हूँ, I don't have it in my memory here. So many things you can't keep in your memory. But written note आप रखिए अपने attendance register के side में जरूर. And also allow students to share events and experiences from home and their community. So, ma'am, yesterday, why didn't you come to school? Ma'am, there was a wedding in my family. Okay. Now what happens is कि instead of telling the child कि शादी में नहीं जाना चाहिए, वो तो जाके आ गया, you can't send him back to that day he has missed. So ask the child to share information about the wedding. उससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्किल बच्चे की बढ़ेगी। मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ इस पे। तो जैसे स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू शेयर, तो सपोज वेडिंग के बारे में लिखना है, सो एनीथिंग दैट अ चाइल्ड हैज, 1 मिनट, तो जैसे उसको वेडिंग में गया था या जयपुर गया था या दिल्ली गया था, क्रिएटिव राइटिंग कराइए। रिमेंबर देयर आर द 5 W's। तो ये आपके क्लास में हो जाएगा कि मैम आई हैड गॉन टू आगरा फॉर अ वेडिंग। सो व्हाई डिड यू गो टू आगरा? What did you see in Agra?
Where did you stay in Agra? When did you go to? So what, when, where, why, and how? How did you go? I went by train. तो अगर students ने ये 5 W's हैं, just remember 5 W's and 1 H, मैं repeat करती हूँ और ये circle बना दीजिए. So where, why, when, how, what? What did you go to Agra for? I went to Agra for a wedding. And whose wedding was it? It was the wedding of my cousin's sister. So you can tell him कि cousin sister नहीं कहते हैं, खाली cousin कहते हैं. तो 5 W's और ये आप पर्सनल डिस्कशंस में लाइए. मैंने शादी का एग्जांपल ऐसे ही दे दिया, बट कोई और बात हो तो वो जो है उससे हम वी कैन काइंड ऑफ क्रिएट a relationship, develop a relationship with the child. Let the child be the center of attention, and also it will help the creative writing skills of all students. Attend extracurricular activities featuring your children, your class. So आपकी डिबेट में ड्यूटी नहीं है, आपकी स्पोर्ट्स में ड्यूटी नहीं, but go to the debate because your student is participating. Clap for the student. आपका स्टूडेंट है, आपने उसको प्रैक्टिस नहीं कराई है. यू आर नॉट, आपकी ड्यूटी भी नहीं है डिबेट में, आपकी ड्यूटी नहीं है स्पीच कंपटीशन में. बट इफ योर स्टूडेंट इज टेकिंग पार्ट, गो गिव हिम एन एक्स्ट्रा क्लैप, एंड दैट एक्सपीरियंस जो आप उसके लिए क्लैप करेंगे या आप उसको हेल्प करेंगे, जो आपकी ड्यूटी नहीं है. ड्यूटी टीचर कोई और है डिबेट के लिए, ड्यूटी टीचर कोई और है डांस के लिए. आप केवल बच्चे को एनकरेज करने जा रही हैं, मोटिवेट करने जा रही हैं. विजिट द साइट इन योर स्टूडेंट्स कम्युनिटी. ये करना थोड़ा सा साइड में मुश्किल लगेगा. मेरा मतलब ये कदापि नहीं है कि यू गो टू स्टूडेंट्स होम, बट जस्ट हैव एन आइडिया, बिकॉज राजस्थान बोर्ड, इफ यू आई रिमेंबर CBSE, I haven't taught in a school since 2008, but if you remember, in the students register, in the attendance register, we write the attendance and we have an address column also. So basically you know the address. अरे कल मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजरी थी, कुछ भी, one line. You don't have to go to the child's house. And also these activities are not complicated. First point I'm saying, जितनी activities मैंने बताई हैं, they are not complicated, but they take time and planning. At the same time, they have a great potential to help teachers develop their knowledge about students, build important relationships, and develop curriculum and instructional practices that are meaningful. जो मैंने instructional practice बताई कि कोई student शादी में गया है और आपने उससे question पूछा और ऐसे लिखने को सबको बोल दिया, या मेरी पहली रेल यात्रा, या मेरी रेल यात्रा. अगर वो ट्रेन से गया है, चाइल्ड फ्लाइट से गया है, तो write the whole, ask the whole class to write an essay. और डायरेक्शंस उस स्टूडेंट से लीजिए. दूसरी चीज है डेवलप अ विजन. वी शुड हैव अ विजन फॉर आवरसेल्व्स, फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज द वर्ल्ड इज नाउ श्रिंकिंग इनटू अ ग्लोबल विलेज. पहला स्टूडेंट, फिर आप हैं, इंस्टीट्यूशन है, पूरी दुनिया है. सो इफ यू नो दैट योर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, the growth of the child depends on your growth, and the country and the world, everything is together. You cannot say mere ko kya, mera kya jata hai. Nahi, everything is interrelated. What is positive stress? दुनिया आपसे कहती है स्ट्रेस मत लो. थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना पड़ेगा. स्ट्रेस जो है वो दो तरह का होता है. मैं 1 मिनट फिर से जूम कर रही हूँ. तो एक तो यू स्ट्रेस होता है, nervousness that you're going to play a game, you're going to speak in front of people, you're riding on a roller coaster, scary movie, fun challenge. या एक स्ट्रेस होता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रही हूँ डिबेट के लिए. और एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है कि anything that makes you weak, fearful and anxious. पर पॉजिटिव स्ट्रेस लीजिए. जो भी, यहाँ तो ये यू स्ट्रेस कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस को. तो एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, दैट स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट. और जितना आप स्ट्रेस लेंगी उतना ही आप इंप्रूव करेंगी. और ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करिए स्टूडेंट्स के संग जो आपको
मोटिवेट करते हैं या जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं और जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं। और अगर आप ऐसे अपने मोटिवेटिंग, it is the duty of the management to create experiences, sessions, seminars, workshops that would motivate and inspire teachers. Being positive role models also creates such experiences. अब जैसे ये वर्ड आया है आपका मोटिवेट, तो अगर आप नोट करेंगे मोटिवेट, इसमें है MOT। आप नोट करिएगा, इंग्लिश टीचर्स हैं तो, इंग्लिश टीचर्स नहीं है तो भी, MOT, MOB, MOV, ये जहां कहीं भी आते हैं इसका मतलब होता है मूवमेंट। तो मोटिवेट, मोशन, मोबाइल, मोबिलिटी, रिमूव, ये सारे वर्ड्स जो हैं, तो एक मोटिवेट और VAT का मतलब होता है लाइफ। तो मोटिवेट इज टू मूव टुवर्ड्स लाइफ। स्पायर का मतलब ब्रेथ होता है। तो आपका काम है, ऑफ कोर्स ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, बट अपने क्लास में ऑल टीचर्स कैन आल्सो स्टार्ट हैविंग some sessions where somebody can share a good experience. उसके बाद जो मैंने बोला था, we have to enrich our analytical abilities. Analytical abilities क्या है, जो राजस्थान बोर्ड में भी आने लगे, हायर ऑर्डर स्किल्स, कि हर क्वेश्चन का ऊपर से आंसर, जरूरी नहीं है व्हाट, और बीएड अगर आप करा होगा आपने, आई एम श्योर सबने करा होगा, तो बीएड में एक लेसन ये देते हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हेन डिड दिस हैपन, ऐसे क्वेश्चंस मत पूछिए। व्हाट वुड हैव हैपेंड, हाउ डिड दिस हैपन, ऐसे क्वेश्चंस हमें पूछने। तो ये एबिलिटीज आपको, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे, आपकी ये एबिलिटीज एनरिच नहीं होंगी। दूसरी चीज है अडॉप्ट एंड अडैप्ट आईटी स्किल्स। आईटी स्किल्स की बात यह है कि दे आर नो लॉन्गर एन एडेड क्वालिफिकेशन। Your IT skill is a necessity because the world is shrinking at a fast pace. ऐसे हम लोगों को Zoom एकदम से पता भी नहीं चला हमें Zoom अडेप्ट हो गया। वैसे ही जो मैंने अभी बोला WebEx है या Google Meet है या Microsoft Teams है, जो भी है, Microsoft Teams मैंने यूज नहीं किया है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल पैकेज है, बट जितने हैं, क्योंकि आइडियाज शेयर करने जरूरी है। और ये याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस टीचर्स, बट टीचर्स हु यूज टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस टीचर्स हु डोंट। आर वेरी what should I say, our very assessment, our very profession, our occupation depends on our ability to adopt and adapt IT skills. जितने जल्दी हम सीखेंगे उतना जल्दी हमारे लिए अच्छा होगा। और किसी चीज को ये मत कहिए सॉरी मुझे नहीं आता। मैं राजमाता स्कूल में पढ़ाती थी, मैत्रेयी जिसकी बात कर रही थी, तो 2008 में मैंने पढ़ाना छोड़ दिया स्कूल में। बट मेरी प्रिंसिपल ने एक बार स्टाफ मीटिंग में कहा था कि मैंने 5-6 टीचर्स को फोन किया, एवरीबडी सेड मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। मिसेस कार्जो को मैंने फोन किया, उन्होंने कहा मैम आई हैव नो आइडिया बट गिव मी हाफ एन आवर, आई लर्न एंड आई गेट बैक टू यू। क्योंकि आजकल तो इतना आसान हो गया, यूट्यूब पे जाओ कुछ भी सीख लो। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट सिंगिंग, सिंगिंग मैं नहीं कर सकती हूँ, बट you have to keep adapting to these skills. और life skills जो है, life skill based education, good teaching cannot be reduced to technique. Good teaching comes from the identity and the integrity of the teacher. Teachers need to empower themselves. अब life skills में एक बात है कि you expect the students to get up and say good morning ma'am, नहीं, आप उनको कहिए जैसे जैसे वो क्लास में आते जा रहे हैं, good morning ma'am, नहीं गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास, वो अपने आप कहेंगे। थैंक यू क्लास आप बोलिए, वो हमेशा बोलेंगे, उनको वेलकम करिए क्लास में। और लाइफ स्किल्स में ऑनेस्टी आती है, इंटेग्रिटी आती है, मैनर्स आते हैं, बॉडी लैंग्वेज आती है, द वे यू वेयर योर क्लोथ्स आता है, कितने सफाई से आप रहते हैं, सब, ऑल दीज आर लाइफ स्किल्स। बट यू हैव टू बी accomplished in these life skills. And remember, good teaching cannot be reduced to technique. Good teaching comes from the identity and the integrity of the teacher. Integrity, I feel, is the most important thing.
Never go and give a surprise test because you are not prepared. Even if you're giving a surprise test, the student should not know it's a surprise test. आपके lesson plan में होना चाहिए surprise test. The term life skills refers to the skills you need to make the most. Any skill that is useful in your life, tying your shoelaces, swimming, driving a car, using a computer, the ability to cook. Broadly speaking, the term life skills is usually used for any of the skills needed to deal well and effective with the challenges of life. और कई बार होता था, खाना बना के क्या करना है, मुझे नहीं है करना. Even that is a life skill. But in the form of a teacher, the ability to use WhatsApp silently, the ability to make PPTs, the ability to make short films, everything is a life skill. There is no definitive list, but 1999 mein kaha tha, there are 6 areas. First is communication and interpersonal skills. Communication is the ability to get on and work with people, to transfer and receive messages either in writing or orally or verbally. So communication and interpersonal skills are the most important life skill. I'm just talking about the 6 life skills that teachers need to improve. Second is decision making and problem solving. This describes the skills required to understand problems, find solutions to them alone or with others, then take action to address them. So the ability to solve problems is also an important life skill. Creative thinking or critical thinking. The ability to think in different and unusual ways about problems and find new solutions and generate new ideas. Also the ability to assess information carefully and understand its relevance. एक बहुत important चीज है कि कोई भी WhatsApp मैसेज आए, जरूरी नहीं है उसको आप फॉरवर्ड कर दें. Assess it carefully and understand the relevance. हर ग्रुप में सुबह सुबह आके कि गुड मॉर्निंग आ जाता है. That doesn't. Send a message only when it is relevant and important. And whenever you are speaking, decide जो मैं बोल रही हूँ या जो मैं लिख रही हूँ, क्या ये सच है, क्या ये जरूरी है, क्या इससे, तो just talking does not address a solution, does not address a problem. Every time you talk, the conversation should move forward. यानी सुनने वाले को कोई फायदा होना चाहिए. That is creative thinking. Self-awareness and empathy. You should know, जैसे मैंने अभी आपको अपने बारे में बोला, this I don't know, इस जन्म में मैं नहीं कर पाऊंगी. I cannot sing for the life of me. So that is, and empathy is कि दूसरों के जो emotions हैं उनको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए. And self-awareness is the knowledge of your own desires, emotions, and motives. You should know what you want and why you want. And this is emotional intelligence and the ability to understand. Then assertiveness, equanimity, and self-control. इसमें ये है remain calm even in the face of considerable provocation. कोई provoke करे तब भी. So passive है, assertive है, aggressive है. Assertive होना है, हमें aggressive हरगिज नहीं होना है. But yes, you should be calm and you should always be in control of your own emotions. Resilience and the ability to cope with problems. Resilience है कि कोई हमें कितना भी परेशान करे, we are not going to, be affected. So self-control, social support, optimism, ability to solve problems, emotional awareness, self-belief और sense of humor. थोड़ा बहुत अपने ऊपर हंसने का मादा भी होना चाहिए. इसका मतलब नहीं है कि दूसरा आपका मजाक उड़ाते जाए, but कभी कोई उड़ा दे तो you should not take an offense to every small joke that is cracked. और जो लाइफ में सामने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सॉल्व करने की हमें शक्ति होनी चाहिए. And we should be able to learn from simple experiences. And also the ability and willingness to learn. हमें ये होना चाहिए. By learning new skills, we increase our understanding of the world around us and equip ourselves with tools we need to live a more productive and fulfilling life. और ये है Brian Herbert का quote है,
The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill, and the willingness to learn is a choice. हमें हमेशा, we should be ready to learn and ready to learn new and new things. Kofi Annan ने कहा था, education is a human right with immense power to transform. On its foundation rests the cornerstones of freedom, democracy, and sustainable human development. दूसरी चीज कोफी अन्नान ने कही, knowledge is power, information is liberating, education is the premise of progress in every society and every family. तो हमें ये life skill ability होनी चाहिए, the willingness to learn. Continually हमें अपने आप को improve करना पड़ेगा. और क्लास केजी से क्लास 1 में गए, क्लास 1 से 2 में गए, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम तो क्लास 2 ही पढ़ाते रहे, हम तो क्लास 3 ही पढ़ाते रहे. हमें मुश्किल होगी. ये वाला प्रेजेंटेशन मेरा खत्म हो रहा है. दूसरा है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी कमेंट देना है, तो यू आर वेलकम. There is another presentation on the way. बताइए नीरजा, कुछ कहना चाहेंगी आप? कल्पना, anybody wants to say something? Yes, ma'am. Sunita. Maitreyi. Maitreyi, Yes, ma'am. Any yes, question? ma'am. I'm here. I'm here. Does any Teachers, if you all have any questions, please. Yeah, any doubt about what Any I doubts? said? या कोई चीज आप चाहते हैं कि मैं बदलूं, या आपको लग रहा है ये सही नहीं है, आई एम वेलकम टू सजेशंस. फिर आगे चलेंगे. Nobody? Priya? No, I don't think. So, it's always nice, teachers. It's always nice when we come up with questions. नहीं तो मैम को लगेगा हम सुन नहीं रहे. Yeah. So I think there's only one ma'am, Vijayshri Dikshit ma'am. उन्होंने लिखा है wonderful. That's a very nice comment, but it's always nice to have questions. Thank you, Vijayshri. Thank you. कोई क्वेश्चन पूछना है सुनीता मैम किसी को भी? नहीं तो आगे चलें. हाँ बोलिए. My name. Yeah. Ma'am, I want to ask something, ma'am. That how to handle a naughty boy in the class, ma'am? My name is Jyoti Sharma, ma'am. Yes, Jyoti. What is your question? Ma'am, how to handle the notorious boys or girls in the class? बहुत naughty जैसे? Make him Yes. the monitor. Make him the monitor. Okay, ma'am. Okay. अच्छा ये ज्योति, मैं दो बातें आपको बता रही हूँ. Yes, ma'am. बहुत साल पुरानी बात है, 95 या 96, 97 होगा, मतलब ईयर मेरा हो सकता है सही नहीं हो. I was class teacher of 6th या 7th. St. Patrick's, it's Sophia School, जोधपुर का. I was class teacher of that class. तो दो चीजें हुई. एक लड़की थी, पूरी क्लास उसको दीदी कहती थी. She was in the same class. तो I call one girl. I said, इसको why do you call her दीदी? She says, मैम ये तो हमारी दीदी है. I said, दीदी कैसे है? तो she says कि मैम ये तो लास्ट ईयर फेल हो गई थी, हमसे 1 साल बड़ी है. I said, अब तो आपकी क्लास में इसको दीदी मत बोलिए, इसको नाम से बुलाइए. मैम ये तो इसकी इंसल्ट हो जाएगी. तो I asked this girl, अंबिका, I said, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो हम अक्टूबर. दूसरी लड़की से मैंने पूछा, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? नवंबर. तो I said, now from today I will tell her to call you दीदी because you are older to her. ठीक है ना? तो then they stopped. उसके बाद मैंने नोट किया, वो जो लड़की जो फेलियर थी, he was extremely neat. उसके कपड़े, उसके बाल, उसके जूते, everything was top of the class. But again, I spoke to the principal. I said, ma'am, sister principal, I want to create a post of neatness monitor. तो वो लड़की मतलब naughty नहीं थी, but failure थी. Academically, naturally पीछे थी, शर्माई हुई थी, घबराई हुई थी, पार्ट नहीं लेती थी. तो मैंने क्या किया, उसको नीटनेस मॉनिटर बना दिया. और जो एक लड़की नोटी थी, ये पर क्लास बड़ी थी, 70-72 बच्चे होते थे सेंट पैट्रिक्स में, उसको मैंने इंचार्ज बना दिया ऑफ कलेक्टिंग ऑल नोटबुक्स एंड पुटिंग देम रोल नंबर वाइज. तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई. तो दूसरी चीज नोट करिएगा, जो नोटी बच्चे होते हैं, मेरा अपना तजुर्बा है, जरूरी नहीं है कि सही हो, बट जो नोटी बच्चे होते हैं वो नोटी इसलिए होते हैं ज्यादा करके, दे वांट अटेंशन. और एक मैंने
एक मैंने एजुटोपिया पे पढ़ा था कि some children come to school to study, some children come to school to find love and some come for both. तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें घर में अटेंशन नहीं मिलती है या प्यार नहीं मिलता है, वो अटेंशन के लिए स्कूल आते हैं और वो नॉटीनेस जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम उनको अटेंशन दें। तो डांटने के बजाय उसको अगर हम मेन स्ट्रीम में ले आए, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेगा ज्योति, मैं मानती हूँ आपकी बात, बट हो सकता है, असंभव नहीं है, कठिन है। और मेरी एक प्रिंसिपल को मैंने एक बार कहा था डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ये, तो शी टोल्ड मी कि ज्योति नेवर यूज द वर्ड डिफिकल्ट, ऑलवेज से अनफेमिलियर। तो तब से मैंने सोच लिया कि कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं है दुनिया में, थोड़ा सा अनफेमिलियर है इसलिए हमें लगता है डिफिकल्ट। Have I answered your question, Jyoti? Yes, ma'am. Sure, ma'am. Yes, ma'am. This is Kirti Paliwal. Jai Shri Krishna, ma'am. Jai Shri Krishna, Kirti. Jai Shri Krishna. Ma'am, one question I want to ask that most of the students are aggressive in nature. For example, 9, 10 student. So this is the age, we can say that this is the age where they can come to an aggression. So how to cope up with that, ma'am? That would be a psychological viewpoint. It's very, again, it's time consuming, Kirti, but pata Okay. lagaiye, why are they aggressive? Okay. You know, too much aggression, of course, would need psycho help. Okay. I'm very sorry, मुझे पक्का नहीं है, but CBSE has made it compulsory कि एक psychologist हमेशा बोर्ड पे रहना चाहिए। Okay. क्या मैम राजस्थान बोर्ड ने भी ऐसा कुछ किया है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं तो है। आप ये कर सकती हैं मैम कि कोई ना कोई टीचर्स होंगी आपके स्कूल में भी जिन्होंने बीए में साइकोलॉजी लिया था या एमए में साइकोलॉजी लिया था, और उनको इस तरफ मोल्ड करके, कीर्ति, हाँ जी मैम, एक जना स्कूल में होना चाहिए जो, मैं मैम से परमिशन लेके आप कहिए कि जो अगर अग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको लग रहा है आप नहीं मैनेज कर पा रही, then take help from the principal or the vice principal, and if possible ma'am, you can have a person who has psychology in BA or MA. She can teach the other subjects, पर उसको बाकी ये अब आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली देखना पड़ेगा whether it is possible or not, मैं तो सलाह दे रही हूँ, and that person could be given 4 extra periods every day, 4 free periods every day to deal with psychological issues. ये प्रैक्टिस सीबीएसई स्कूल्स में हो रही है, मैत्रेयी मैम को मालूम होगा कि एवरी स्कूल हैज टू हैव अ साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड, तो वो हैंडल करेगा। और थोड़ा सा तो हमने अगर बीएड करा है, बीएड में याद है एक पेपर होता था एजुकेशनल साइकोलॉजी। Actually ma'am, according to what I think to handle them will very patiently or the calmly we can overcome with that problem. यहाँ तो पेशेंस और वो मैंने रेजिलियंस बोला ही, वो लाइफ स्किल है ना। बट अगर आपको कहीं लग रहा है, क्योंकि वास्तव बात बता रही हूँ, ये जो 2 साल बीते हैं ना, पैंडेमिक के, घर में बंद रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो जो अग्रेशन जिसमें नहीं था वो भी अग्रेसिव, you must be feeling it in your own this thing also, like in our own personality also sometimes there's so much of frustration। और पहले 1.5-2 साल तो घर से ही नहीं निकले, अब तो घर से निकल रहा है। Any other? किसी ने हाथ उठाया? I think शालिनी, हाँ शालिनी कुछ कहना है? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Shalini. Actually, same thing is that whenever we are entering in a class, class is shouting too much, and whenever we are try to stop the whole student and manage them all, they starting shouting too much. Then how can we control till start to end? Student are make in behavior. मतलब वो पूरी time अगर आप क्लास टीचर हैं, अगर आप क्लास टीचर हैं शालिनी, तो एंटर द क्लास बिफोर द स्टूडेंट्स। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो शालिनी कैसी हो? हेलो रीटा कैसी हो? हेलो कीर्ति कैसी हो? सो नाइस टू सी यू, नाइस एंड काम। वो शोर मचा रहे हैं तो भी तारीफ कर दीजिए उल्टी। एंड ग्रीटिंग एट द डोर, अभी मेरे पास है या नहीं देखती हूँ, इफ आई हैव दैट प्रेजेंटेशन। ग्रीटिंग एट द डोर वर्क्स वंडर्स। अंदर आते आते हर एक को वेलकम किया जा रहा है, शेक हैंड किया जा रहा है, खुश किया जा रहा है,
और ये मत कहिए चुप हो जाओ चुप हो जाओ, वो भी चिल्ला रहे हैं आप भी चिल्ला रहे हो, वो चिल्ला रहे हैं आप टेबल पीट रहे हो, मीटिंग चल रही है मेरी इसमें। तो इट डज नॉट हेल्प, it does not help. It will be helpful only when you take the lead. और जो ज्यादा शोर मचा रहा है उसको मॉनिटर बना दो, उसको बोलो कि कंट्रोल द क्राउड। और दूसरा, of course, do it with the permission and coordination of your principal. That give that naughty child some extra marks for doing some extra work. So he will feel, you know, the attraction of marks. क्योंकि चाहे हम जो भी कह दें, marks का attraction तो होता ही होता है। बताइए। Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank Really. you. Any other questions? Kalpana, Kulshesh, Jai Shri Krishna, ma'am. Jai Shri Krishna. Actually, I am teaching compulsory subject Hindi and Sanskrit. वाह। So, actually, ma'am, some students are not taking Hindi. It is not Seriously. a easy way. Hindi in a easy way, not taking in a serious way. So what can I do? सबसे बात तो कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। Yes, ma'am. सभी की मातृभाषा होगी, राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है। मेरी तो लोगों से बहस हो जाती है जब कहते हैं हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी आनी चाहिए। और हिंदी एक्चुअली हिंदी मजेदार भी कितनी है। हिंदी में पोएम सुनाइए। एक्चुअली मैम वो लोग क्या है कि हिंदी में इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि ओनली वन पीरियड इज, हिंदी में केवल एक ही पीरियड होता है। वो तो हर सब्जेक्ट में एक ही पीरियड होता है। नहीं, हिंदी मतलब जो लैंग्वेज है वो हिंदी में, बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं, साइंस है, मैथ्स है, हिस्ट्री है, वो तो इंग्लिश में। सब्जेक्ट नहीं, पर हिंदी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। और आप भी हिंदी में ही बात करिए, हिंदी का उच्चारण जी मैम स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। हाँ बिल्कुल सही मैम। एक लाइन में बोलती हूँ हमेशा, जो मैं कहती हूँ, मैं भूल रही हूँ, देखो। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे इंग्लिश ने पाला है। लता हया की लाइन, अगर आपने सुनी हो, मेरी लाइन्स नहीं है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे इंग्लिश ने पाला है, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी इंग्लिश भी आला है। वास्तव में माय हिंदी इज बेटर देन माय इंग्लिश, माय संस्कृत इज बेटर देन माय हिंदी। तो आप करिए और मेक देम फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। कोई कविताएं लाइए, कोई कहानियां लाइए। एक महादेवी वर्मा का एक पद मैम बहुत अच्छा लगता है, मैं शेयर करना चाहूंगी। जरूर। हे नव की दीपावलियों, पल भर को थम जाना, मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। ओहो, मेरे प्रियतम तो जब तक अस्पताल में करते थे तब तम के उसमें भी चले जाते थे अस्पताल। क्या मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। हाँ, मेरे प्रियतम को भाता था तम के पर्दे में जाना। बिकॉज यूजुअली जो एक्सीडेंट्स होते थे ना, ही इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, ही इज रिटायर्ड नाउ। तो एक्सीडेंट्स होते थे, मास कैजुअलिटी होती है मैत्रेय। सो मास कैजुअलिटी वुड बी कि ट्रक टकरा गया बस से। ओके। तो ये तो होता है रात को 2 बजे 3 बजे। तो मैं हमेशा यही कहती थी, मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में जाना। उनको क्या भाता है, उनकी तो नौकरी थी। चलिए और बताइए। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है मैम, तो मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगता है। This means that please sunlight come a little late. My husband, my Priyatam likes to come in the darkness of the night. Oh, okay. वो जख्मी का एक गाना था ना, वो मुझे याद नहीं आ रहा। पूजा भट्ट गाती है, आज तो नई चांदनी आज फिर ये आए हैं टाइप। गली में आज चांद निकला। हाँ, गली में आज, दैट इज द मीनिंग मैत्रेय। अच्छा ठीक है मैम। आज गली में चांद निकला। तो ये तो मैम मेरी तेलुगु वैसे बहुत अच्छी है। चलो तेलुगु में गुड थैंक यू कैसे बोलते हैं? तेलुगु में थैंक यू। हाँ, अच्छा एक तेलुगु में एक चीज है, यू नो, आंध्र प्रदेश की जो ब्राइड है, शी वेयर्स ग्रीन, आपको पता है ना? आई नो तमिल में थैंक यू बोलते हैं नानरी, एंड वेलकम बोलते हैं वारे वीर पू। You know Tamil. I don't know Tamil. I conducted a workshop in a college in Tamil Nadu. So I began it with Vare Veer Poo. मतलब ये namaste and thank you are very similar. I mean, even in Telugu we say dhanyavad also. Okay, in Tamil it is normal dhanyavad. Tamil it is Nanri.
So I Yeah, said, Tamil is Vareveer. very different. No, but Maitreyi, I started the workshop with Vareveer Poo. That means welcome. I Yes. ended the workshop with Nanri. That's Oh something God. that even I have done across the country when we travel, ma'am. When I went to Kerala, Yeah. I was doing that. When I go to Tamil Nadu, I do that. मैं एक बार सीख के जाती हूँ, so that they, you know, they feel that. No, and I write it also. मैंने अभी जैसे Yeah. बोला था ना, I do that. Yes. Okay. Any other questions? Any other questions, teachers? हाँ जी मैम. Yeah, Are we in the mood for another PowerPoint or it's 5 o'clock? Should we end? Whatever you say, Maitreyi. Few more questions अगर है तो please पूछ लीजिए. I'm requesting the teachers. If we begin another PowerPoint, it'll take another hour. Yeah. So, if there are any other points that you'd like to add on, ma'am, you could do that. Maybe कुछ और कुछ दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो. But don't begin another PowerPoint because it'll be another hour. Can I say something, ma'am? हाँ जी जरूर. Actually, ma'am, आपने जितना भी अभी जो आपने अभी एक लेक्चर दिया, ये जो आपका जो टोन था कि जावेद आखरी जैसा लग रहा था, थोड़ा बहुत मतलब जो आपका बोलने का जो तरीका था ना, जावेद आखरी जैसा लग रहा था. हाँ. मैम हमारे लिए ना मेरे लिए मैंने नकल नहीं करी है. And she always talks. मैम. हाँ, yes. मैंने नकल नहीं करी है जावेद जाफरी की. बहुत इम्प्रेसिव मैम. हाँ इम्प्रेसिव है, पर मैं बोलती ऐसे हूँ. मैं बोलना मेरा काम है. मतलब my work is to talk ना. So yes. ये वाली चीज है. और ये किसने बोला अभी कि आप जावेद जाफरी के जैसे हैं? हमारी हिंदी टीचर. अच्छा अच्छा अच्छा. कल्पना. नॉट जैसे मैम, आपका तरीका. हाँ वही मतलब मैंने उनको फॉलो नहीं किया, बट हो सकता है. एक्टिंग तो करनी पड़ती है ना. And the best thing is, ma'am, you're very good with your Hindi and with your English and Sanskrit, which is the blessing, you know. संस्कृत तो मैंने नहीं बोली, पर इस क्लास के लिए बहुत अच्छा है. So, yes. हाँ बोल सकती हूँ. सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ, भारत वो देश है जिसका फर्स्ट चीज है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. The gods reside where women are honored and worshipped. आपका स्कूल मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मतलब यहाँ विमेन पावर देखने को मिलता है, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ ही रहा है. जी मैम. हाँ जी मैम, थोड़ा सा हम लोगों को जैसे बड़ी क्लासेस हैं 10th 11th 12th बल्कि 9th. जी नीरजा. मैम हम लोगों को अधिकतर ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं गर्ल्स की तरफ, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है. देखा जाए बच्चों का ध्यान ही पूरा गर्ल्स की तरफ होता है. मतलब 20% बच्चे आप देखो कुछ क्लासों में इसी तरह के बैठे होते हैं कि जो पूरा फोकस ही उनका गर्ल्स की तरफ होता है. तो मैम उनके लिए कैसे क्या हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा आप आइडिया दें. मेरे ख्याल से आई थिंक कि घर में उनको रोका जाता होगा लड़कियों को देखने से. है ना. ये हो सकता है. आई हैव नो दिस थिंग, क्योंकि मैंने तो 74 में बीए किया था. 76 में मैंने माय एमए इज इन हिस्ट्री एंड एमफिल इज इन हिस्ट्री. एमए लिटरेचर मैंने बहुत बाद में किया है. तो आई डोंट थिंक कि मेरे संग ये प्रॉब्लम कभी पर्सनली हुई थी. मतलब आई डोंट नो, ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को प्रॉब्लम थी दैट आई वाज नॉट अट्रैक्टेड टू बॉयज. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इफ दे फील इट इज ओके, या तो नया एडमिशन लिया होगा. अभी जब आपका सेशन शुरू हुआ था उससे पहले मैं बात कर रही थी मैत्रेयी से एक स्कूल के बारे में. तो आजकल तो क्या हो गया, एवरीबॉडी इज स्टडीइंग इन कोएड. तो उनको ये प्रॉब्लम आती नहीं है. या तो नए आए हैं तो आई होगी प्रॉब्लम, नहीं तो अमूमन मैंने देखा है क्योंकि लड़के लड़की शुरू से साथ पढ़ रहे हैं, तो ये वाला इशू आता नहीं है. पर आता है तो थोड़ा, या तो आप क्लासेस लगाइए उसमें. फिर से मैं सीबीएसई की तरफ जा रही हूँ. मैत्रेयी, यस मैम, आपको ध्यान होगा एक एडोलेसेंट टीचिंग वर्कशॉप्स हुई थी. यस यस, याद है? वो टीचर्स के लिए कराई गई थी स्पेशली. इस
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो टीचर्स को हैंडल करना पड़ेगा विद द That's a very big issue, ma'am. Adolescents के workshops पता नहीं कितने हमने भी किए हैं, आप भी किए हो, मैं भी की हूँ, and that's a very big problem, and मैम it हमारे should be यहाँ भी addressed. होती है, सॉरी Yes. हम लोग भी करवाते हैं, डॉक्टर्स को बुलवा के करवाते हैं, साइकोलॉजिस्ट को बुलवा के करवाते हैं। हाँ, इस सेशन में नहीं हो पाया जी। हाँ नहीं, ये तो कोविड की वजह से जी नहीं जी हो जी पाया है। जी मैम। अदरवाइज मेरा ये सोचना है कि इस समय जो ये अट्रैक्शन होता है, ये नेचर ही होता है इस एज में बच्चों का, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये बच्चों को आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो, क्लास में इतना अट्रैक्शन दो बच्चों को, या उनको अपने सब्जेक्ट से ऐसा बांध के रखो कि वो इस तरह अट्रैक्ट नहीं हो। हाँ, एक्चुअली द टीचर इज द सेलर ऑफ द शिप, कैप्टन ऑफ द शिप। आप उनको कंट्रोल करिए, आपकी पढ़ाई में उनको इतना मजा आना चाहिए कि वो भूल ही जाए कि साथ में लड़की बैठी है या लड़का। बिल्कुल। कहना आसान है, मैं फिर से मानती हूँ मैंने कह दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। चलिए, किसी से होगी तो सही, just that we have to go unnoticed, you know. Yes, We ma'am. shouldn't react too much. Yes. तो हाँ, वो ध्यान मत normalize दीजिए, हो जाता इग्नोर करिए। है। ध्यान अगर देंगे तो they because they want to do it more. Yeah. So just avoid silent and focus on the subject and your class, and that works wonders. Yeah. Yes, ma'am. Anything else? Any more questions? I think no more questions. Chaliye, ma'am, we can end the session then. Thank you. Thank you so very much. It was a wonderful session, and I'm sure it was enlightening for all the teachers. And it is again a privilege, I would say, to have you with us, ma'am. Thank you. I know Thank it you, would be Maitri. very difficult to bring you here, but मेरे एक बार बोलते ही आपने हाँ बोल दिया, so I was very happy. But, Thank you. Thank yeah, you. you are like family, and the school is family to me as well. So Thank you, Maitri, for this opportunity. Thank you. thank you, you, Sunita ma'am. Thank you so Thank much. you, Thank Sunita you मैम, ma'am. माय प्लेजर विद यू। जब भी जयपुर आए तो जरूर मिलिएगा। जी जरूर, जी जरूर। आ रहे हैं आप। मेरा घर श्यामनगर में है। ओके ओके मैम, आप श्यामनगर में है मेरा घर, मैं आऊंगी। मैत्री मुझे बताइए मैडम कब जयपुर में है। मैं जब भी आती हूँ मैं श्यामनगर ही जाती हूँ, मतलब श्यामनगर में ही रहती हूँ। मेरा घर जो जयपुर में है वो श्यामनगर में है, आत्रेय पथ पे। ओके, चलिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, दिया हमको, थैंक यू, मोटिवेट किया, गाइडलाइन दिया हमको। थैंक यू। मैं बंद कर दूं मीटिंग, मैत्री? Yes, ma'am. We'll end the session now. Thank you so much.